आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ. So, as far as dicot leaf is concerned, dicot leaf, it is also called, the leaves of dicot plants are called dorsiventral. Dorsiventral means, as I have told you in previous videos, that the leaves are arranged perpendicularly in dicots. That's why they are called dorsiventral. If this is a stem and this is a leaf, and in this leaf we do have reticulate venation. So इसी की एनाटॉमी को हम जानेंगे आज इस वीडियो में. डॉर्सीवेंट्रल इसी को कहते हैं. और दूसरा, इसको डॉर्सीवेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लोअर साइड में स्टोमेटा होते हैं, अपर साइड में इसके पास स्टोमेटा नहीं होते हैं, जिसको हम बाद में अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस कहते हैं. अगर मैं इसका एक सेक्शन ले लूं तो उसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगी. तो वी डू हैव लाइक this would be our upper epidermis. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपर एपिडर्मिस, और इस अपर एपिडर्मिस को हम दूसरा नाम एडएक्सियल भी बोलते हैं. एडएक्सियल लेयर और अपर एडएक्सियल एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस कहते हैं. उसके बाद हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस. मैं यहाँ पे बना दूं, वी डू हैव लोअर एपिडर्मिस. मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूं, एक डाइकॉट लीफ की. दिस इज ऑल्सो आवर एपिडर्मिस विच इज आवर लोअर एपिडर्मिस. दिस इज आवर लोअर एपिडर्मिस, और इट इज कॉल्ड एबएक्सियल. This upper epidermis is called adaxial and the lower epidermis is called abaxial. Then we do have, in upper side there is a cuticle. This is a cuticle, and on the lower epidermis we do have also a cuticle. This is our cuticle. This is the cuticle I am drawing, and this one, it is a cuticle. And in between these two layers, upper epidermis and lower epidermis, there is one more layer which is called mesophyll layer. मेसोफिल लेयर को बनाने से पहले मैं वेस्क्यूलर बंडल्स यहां पे रखता हूं. वेस्क्यूलर बंडल्स, और जो लोअर एपिडर्मिस हमारा है इसके पास होते हैं स्टोमेटा. और स्टोमेटा के साथ आपका पास होते हैं, उसके पास होते हैं गॉड सेल्स जो कि किडनी शेप्ड होते हैं. वी डू हैव on the lower epidermis we do have minute structures called stomata, and the stomata are guarded by kidney shaped or bean shaped cells. So here you are seeing the stomata. This is the stomata on the lower epidermis in case of dicots.
In case of monocots, stomata can be found on the both sides of epidermis. अपर एपिडर्मिस पे भी हमें स्टोमेटा मिलेंगे और लोअर एपिडर्मिस पे भी हमें स्टोमेटा मिलेंगे। उसके बाद जो अपर साइड है इस मीजोफिल टिश्यू का, मीजोफिल लेयर का, इट इज मेड अप ऑफ elongated vertical cells, barrel shaped, elongated. These are elongated and compact, closely packed vertical cells. These are elongated, closely and parallel. These cells are parallel. These cells are vertical. These cells are closely packed. And this is called, और किन cells का बना हुआ है? पेरिनकाइमा का। तो this is called, this one that I have drawn is called palisade parenchyma. We do have palisade parenchyma. This one that I have drawn. From palisade parenchyma till lower epidermis, we do have loosely arranged parenchymatous cells which are oval in shape or round. These are called spongy parenchyma. Spongy parenchyma, which are oval or round. We can say these are loosely arranged, loosely packed parenchymatous cells, जिसको हम spongy parenchyma कहते हैं. So both spongy parenchyma and palisade parenchyma both together are called as mesophyll layer or mesophyll tissue. इन दोनों को एक साथ नाम देते हैं मेसोफिल टिश्यू और मेसोफिल। या आपसे पूछा जाएगा मेसोफिल टिश्यू किसको कहते हैं? उस लीफ को मेसोफिल कहते हैं जिस लीफ के पास क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। और ये यहाँ पे मैंने एक गैप बना दिया है जो स्टोमेटा के बिल्कुल ऊपर है। इस गैप को हम ईयर कैविटीज कहते हैं या कहते हैं हम सब स्टोमेटल स्पेसेस और सब स्टोमेटल स्पेस। यहाँ पे भी मैं यही स्पॉन्जी सेल्स जो कि ओवल है, राउंड है, बराबर कहाँ तक जा रही है? बिल्कुल लोअर एपिडर्मिस तक जा रही है और बनाती है एक कैविटी। दिस कैविटी surrounding the stomata is called substomatal space. Here is substomatal space. So ये एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ है। वी डू हैव अपर एपिडर्मिस जिसको एडैक्सियल कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस जिसको एबैक्सियल कहते हैं, और लोअर एपिडर्मिस के पास इसके पास स्टोमेटा होते हैं। जहां तक वेस्कुलर बंडल का ताल्लुक है ये अरेंज्ड है। मैं लिख दूं यहाँ पे ये अरेंज्ड, they are arranged as, they are conjoint. Conjoint means सेम रेडिये पे दोनों होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. The xylem and phloem are arranged or located on the same radii. This is called conjoint. दूसरा इनके पास होते हैं अरेंजमेंट कोलेटरल. कोलेटरल मीन्स एक साइड जाइलम और दूसरी साइड फ्लोएम होता है. तीसरी बात ये होते हैं क्लोज्ड. क्लोज्ड मीन्स दे डोंट हैव वेस्क्यूलर कैम्बियम. सो मैं लिख दूं डोंट हैव वेस्क्यूलर कैम्बियम. वेस्क्यूलर कैम्बियम. जब वेस्क्यूलर कैम्बियम इनके पास नहीं होता है तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होने का चांस नहीं है. सो यहाँ पे बना दूं मैं. सो इस तरह होगा हमारे पास टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस होगा
प्रोटोजाइलम, फिर होगा मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं आप बेटा, मेटाजाइलम जो है वो हमारे पास लोअर एपिडर्मिस की ओर है, और प्रोटोजाइलम जो है वो हमारे पास अपर एपिडर्मिस की ओर है। एंड द कंडीशन इज कॉल्ड exorge. So this condition is exorge. In case of roots it is exorge. In case of stem it is endorge. In case of leaves it is again exorge. So बाद में यहाँ पे अगर बना देंगे हम, तो यहाँ पे नीचे वाले साइड पे हम रखते हैं फ्लोएम। और आपको पता ही है जाइलम के पास कौन क्या क्या चीजें होती हैं। जाइलम के पास होती हैं वो चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, xylem fibers, xylem parenchyma, we do have xylem vessels, we do have tracheas। तो ये चीज़ें हमारे पास जाइलम के पास होती हैं। और फ्लोएम के पास क्या होता है हमारे पास बेटा, हमारे पास होता है फ्लोएम फाइबर, हमारे पास होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, हमारे पास होते हैं सीव ट्यूब्स, और हमारे पास होते हैं कंपेनियन सेल्स। तो ये बात हो गई डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी की। मान लो ये जो मेरा हाथ है ये डाइकॉट लीफ है, इसके अपर साइड में स्टोमेटा नहीं होते हैं और लोअर साइड में इसके स्टोमेटा होते हैं, ताकि जब सूरज की रोशनी ऊपर के अपर एलिमेंट्स में पड़ती है तो वाटर लॉस होने का चांस ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो डाई भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास पानी ही नहीं रहेगा। तो नेचर का काम देखो, ये जो स्टोमेटा है लोअर एपिडर्मिस पे रखे हुए हैं, सो दैट ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम किया जाए, और इस तरह जो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन से जो होती है उससे बचा जाए। दैट्स व्हाई दीज लीव्स आर कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल। सो ये बात हो गई डाइकॉट लीफ की। अगर मैं यहीं पे मोनोकॉट लीफ की बात कर दूं, मोनोकॉट्स में मोनोकॉट्स जो होते हैं, अगर मैं यहाँ पे फिर से बना दूं, चलो मैं लिखूंगा मोनोकॉट, मोनोकॉट लीफ, उसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल मीन्स उसके इक्वल साइड दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। तो मैं बनाना चाहूंगा, अगर मैं एक, चलो बेटा ये मान लो एक स्टेम है हमारे पास, और इसके ये लीव्स इस तरह होते हैं, दे आर पैरेलल। यहाँ पे ये लीव्स जो होते हैं स्टेम के साथ पैरेलल होते हैं, और इसमें जो लीफ का साइड स्टेम की ओर है, दिस वन इज टुवर्ड स्टेम, यहाँ पे अपर एपिडर्मिस इसको कहेंगे, और जो अगेंस्ट स्टेम है उसको लोअर एपिडर्मिस कहेंगे हम, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। तो अब मुझे बनाना है इस तरह लीफ, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये वर्टिकल ये पैरेलल होते हैं और इसके दोनों साइड पे होते हैं स्टोमेटा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइसोबाइलेटरल। तो लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख दूं, ताकि आपको फर्क करना आएगा मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। तो यहाँ पे भी बेटा हमारे पास है अपर एपिडर्मिस, we do have upper epidermis and we do have lower epidermis, flat cells, this is our lower epidermis। so यहाँ पे लिख देंगे हम this one and this one, दोनों का मैं यहाँ पे साथ साथ में ले रहा हूँ, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स का। this is called lower epidermis which is found in both types of leaves। lower epidermis को दूसरा नाम लिखते हैं एबएक्सियल,
एबैक्सियल, और ये बेटा हमारे पास है दिस वन इज अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, इसको हम कहते हैं बेटा एडएक्सियल, एडएक्सियल। देन वी डू हैव cuticle in here, we do have cuticle, this is the cuticle and this has also a cuticle. So in case of both the leaves, both the types of plants, both types of plants have a cuticle. So again we are labeling it as cuticle. जिगर मेरा, मैं बीच में यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बात कहना भूल गया, जिगर मेरा ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं विद द थिक वॉल्ड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। लेकिन पैरेन्काइमा और उसको बोलेंगे जिस वॉल से सराउंडेड है दिस वेस्कुलर बंडल, इस वॉल को हम बंडल शीट कहते हैं, बंडल शीट। ये क्या होता है बेटा, ये होता है थिक वॉल्ड। बाकी सारी और हमारे पास मिलेंगी पैरेन्काइमा सेल्स थिन वॉल्ड, ये है थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा। और यहां पे भी हमारे पास है थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा, दिस वन ऑल्सो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा। देन बेटा हमारे पास जो है ये सारा जो बीच, इनके बीच में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो गैप है जिसको हम बोलते हैं मेसोफिल, एंड इट इज फिल्ड विद द स्पॉन्जी सेल्स ओनली, वी डोंट हैव पॉलीसेड सेल्स, वी डोंट हैव पॉलीसेड पैरेन्काइमा, we have only spongy parenchyma all over this mesophyll tissue. Then on the both sides we do have stomata. We do have stomata on upper epidermis and also on lower epidermis. So यहाँ पे भी आपको अपर एपिडर्मिस में भी मिलेंगे स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस में भी मिलेंगे स्टोमेटा, लेकिन इनमें क्या फर्क है, यहाँ पे आपको डम्बल शेप्ड जो मिलेंगे गॉड सेल्स, डम्बल शेप्ड, और यहाँ पे मिलेंगे आपको किडनी शेप्ड. This is the main difference in the monocots and dicots as far as the stomata is concerned. तो यहाँ पे खाली एक ही साइड में आपको स्टोमेटा मिलेंगे और वो है किडनी शेप्ड गॉड सेल्स, और यहाँ पे दोनों साइड से मिलेंगे आपको स्टोमेटा जो होते हैं, इनके गॉड सेल्स जो होती है वो होती है डम्बल शेप्ड, और यहाँ पे भी होती हैं ईयर कैविटीज जिनको आप बोलेंगे बिल्कुल बेटा आप उनको बोल सकते हो सब स्टोमेटल स्पेसेस. वी डू हियर have a stomatal substomatal space. Again this is our substomatal space here. चलो मैं लिखता हूँ substomatal space. तो जिगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके पास भी सबस्टोमेटल स्पेस है, इसके पास भी सबस्टोमेटल स्पेस है या एयर कैविटी है, तो दिस इज द सिमिलरिटी. लेकिन जिगर मेरा यहाँ पे आपको दो किस्म की सेल्स मिलती हैं, पैलिसेड और जो कि बैरल शेप होती है और स्पॉन्जी जो कि ओवल होती है, लेकिन इसमें आपको सारी सेल्स मिलती है ओवल शेप्ड और राउंड शेप्ड. और सो इसका मेसोफिल इन डाइकॉट्स का मेसोफिल टिश्यू आपको इसमें दो सेल्स मिलेंगी आपको, और इसमें आपको एक ही किस्म की सेल मिलेगी. एक चीज का ख्याल रहे, जो इसमें भी पेरेन्काइमल सेल्स हैं, सॉरी
एपिडर्मल सेल्स। चलो यहाँ पे भी बंडल शीट है, यहाँ पे भी बंडल शीट है। और ये वाली कंडीशन जो है, प्रोटोजाइलम जो है अपर एपिडर्मिस की ओर, और मेटाजाइलम जो है वो है लोअर एपिडर्मिस की ओर। बाद में हमारे पास है फ्लोएम। वो चीजें सेम हैं, लेकिन तो यहाँ पे भी आपको मिलता है, पहला पॉइंट मैं लिख दूं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, और मिलता है आपको क्लोज्ड। और क्या मिलेगी बेटा आपको, एक्सॉरिस्ट कंडीशन। तो दोनों में सेम है। डिफरेंस क्या है बेटा, इन केस ऑफ डाइकॉट्स स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे है, इन केस ऑफ मोनोकॉट्स स्टोमेटा बोथ साइड्स, बोथ एपिडर्मिस पे है। एक दोनों के पास है बंडल शीट कवरिंग ऑफ पेरेन्काइमा। यहाँ पे भी बंडल शीट है, यहाँ पे भी क्यूटिकल है, यहाँ पे भी क्यूटिकल है। और यहाँ पे जो है दिस इज डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लीव्स होते हैं जो परपेंडिकुलरली होते हैं टू द सिस्टम, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लीव्स होते हैं और उनके पास दोनों साइड से होते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल। तो ये बात हो गई एनाटॉमी की। एक और चीज मैं बता दूंगा आपको, जो बेटा हमारे पास एपिडर्मल सेल्स होती हैं दोनों में, मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट्स में भी। मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में जो एपिडर्मल सेल्स यानी कि अपर एपिडर्मिस की सेल्स, लोअर एपिडर्मिस की सेल्स, अपर एपिडर्मिस की सेल्स, लोअर एपिडर्मिस की सेल्स, उनके पास होता है दो, वो विदाउट क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो एपिडर्मल सेल्स और विदाउट क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इनके पास जो गॉड सेल्स होती हैं, गॉड सेल्स जो दोनों के पास होती हैं, इसके पास होते हैं डम्बल शेप्ड गॉड सेल्स, इसके पास होती है बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड गॉड सेल्स। और गॉड सेल्स के पास होते हैं, गॉड सेल्स के पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये चीज सिमिलरिटी है इन बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। एक और चीज जो इनमें आपको दिखाई देगा इनके साथ मोनोकॉट्स, जो इनके साथ डाइकॉट्स नहीं होते हैं। मोनोकॉट्स में क्या होता है, जो हमारा ये वाला अपर एपिडर्मिस है, दिस इज आवर अपर एपिडर्मिस। आपको अपर एपिडर्मिस जो है, मैं फिर से यहाँ पे स्टम रख दूंगा आपके लिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। जैसा मैंने बोल दिया बेटा, जो सिस्टम की ओर है इसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, जो सिस्टम के अगेंस्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोअर एपिडर्मिस। जो ये अपर एपिडर्मिस होता है, कहीं पे इसकी जो सेल्स है वो इलोंगेटेड हो जाती है, इलोंगेटेड। तो मैंने लिखा यही एपिडर्मिस की सेल्स बन गई इलोंगेटेड, और जिगर मेरा बनती है कलरलेस, इलोंगेटेड, कलरलेस और थिन वॉल्ड। ये बन जाती है यहाँ पे सेल्स। इन सेल्स को हम बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट रोल है इन मोनोकॉट्स। दो दिस सेल्स बिकम एलोंगेटेड, कहीं पे अपर एपिडर्मिस में थिन वॉल्ड और कलरलेस। जिगर मेरा जब ये प्लांट या मोनोकॉट, चलो ये हमारा अपर एपिडर्मिस है और यहाँ पे आपको ये बुल्लीफॉर्म सेल्स नजर आ रही है। जब ये पौधा करेगा एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस मीन्स जब इनके अंदर पानी चला जाएगा तो ये जो बुल्लीफॉर्म सेल्स हैं दे बिकम टर्जिड, इनमें टर्गर प्रेशर आएगा और पत्ता जो है वो ओपन होगा, खुल जाएगा। और जब ये इन्हीं तो वो था एंडोस्मोसिस पे। एंडोस्मोसिस इंशाल्लाह जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंडोस्मोसिस, उसमें आपको फिर से समझाएंगे हम। एंडोस्मोसिस से जो बुल्लीफॉर्म सेल्स हैं, बुल्लीफॉर्म
फॉर्म सेल्स ये जब बन जाती हैं ये टर्जिड होती हैं, दे बिकम टर्जिड, और जो है जो पत्ता है वो रोल आउट होता है। फिर जब यही सेल्स इनमें एक्सोस्मोसिस होगी, एक्सोस्मोसिस मीन्स जब इनमें से पानी जो है बाहर आएगा तो ये बिल्कुल लीफ जो है वापस अपनी जगह पे आएगा और कर्व होगा इनवर्स, इसका एक कर्व इनवर्स होगा जिसको हम बोलते हैं उसकी सेल्स तो तब होंगी फ्लासिड। तो इस तरह टर्जिडिटी से जो इसका कर्ल है या ये लीफ जो है आउटवर्ड जाएगा बिकॉज ऑफ द बुलिफॉर्म सेल्स, और जब ये सेल्स फ्लाशिड करेंगे तो ये बिल्कुल स्टम की ओर वापस आएगा कर्व बना के। इस तरह रोल इन एंड रोल आउट का काम कौन करती है, यही बुलिफॉर्म सेल्स, इनके साथ मोनोकॉट्स, जिस तरह ये जो ट्रांसपायरेशन रेट है उसको बचाते हैं। इसलिए क्योंकि इनके दोनों साइड स्टोमेटा होते हैं तो इन कर्ल आउट कर्ल करते हैं ये, तो उसकी वजह से ये मोनोकॉट्स काम करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया। सो वी हैव डन with the anatomy of flowering plants. Inshallah we will take plant physiology in next video. Till then,